Viren Kumar Vijay ji. We are very much thankful for accepting our invitation for a talk and interaction session with our faculty members and students. So since we are telecasting this on YouTube, so many people will join from outside of this IIT Indore as well. So Professor Virend is a national coordinator of Unnat Bharat Abhiyan. He is going to talk about role of Unnat Bharat Abhiyan program for inclusive India and Atmanirbhar Bharat. He is also IREDA Chair Professor CRDT at IIT Delhi. Professor Virend is holding various positions. So maybe if participant are interested, so please visit on the profile of Professor Viren. He is very famous person and doing so many good work for society. That is good things, and we are getting encouragement by seeing him. So without taking much time, so I would like to invite Professor Viren. So please start your talk. Surely this will give encouragement to us to do more work in the direction of Unnat Bharat Abhiyan, Rutag, and other things. So, Professor Viren, please. Yeah, sure. So, first, I am thankful to all the people who have joined this program in the morning today and understanding about Unnat Bharat Abhiyan and how faculty member or student or staff member in IITs and other institutions can contribute for the development of our society in the country and particularly rural areas. So, in IIT Delhi, we are having a center called Center for Rural Development and Technology. And it was established in 1979. And there was a long struggle for establishing such kind of center in IIT systems. The first center in the country came up in ISC Bangalore in 70s, and that was known as ASTRA, Application of Science and Technology in Rural Areas. And Professor A.K.N. Reddy, who was the stalwart in mechanical engineering aerodynamics, was the person behind setting up the center. And then second was IIT Delhi, and then Chitara in IIT Bombay. And now other IITs have also joined in. So there are many IITs where this kind of centers or school or different units are working, which is contributing to the development of our society. Before I start, I would like to draw your attention about IIT's contribution in our country and IIT's contribution in development of USA. So in 2004, American Senate Congress has passed a resolution that there is a lot of contribution of development of US due to the people of IITs in US. Our parliament has not passed any resolution appreciating contribution of IITs for the country, but Congress has passed a resolution in US for the appreciation of IIT people for development in US. So we have to understand whether our institute are Indian Institute of Technology or American Institute of Technology. We are working for India or we are working for multinationals or big companies or US. But now the situation has changed. Till 70s, 80s, most of IITians were going to US and Europe and contributing there. But after 2000, the situation has changed. IITians are now staying in India, contributing for startups, entrepreneurship, and development of our country. And after globalization, all these big multinational companies are also part of India, and they are getting good positions in those companies. So IITs are equally contributing for the development of our nation.
but there is more is required because our country is so large, so huge, and there is more need of brilliant people, genius people who are part of IITs, part of the elite institution in the country to contribute more for the development of our society. So with this background, I will share my PowerPoint presentation and discuss with all of you that how we can contribute, how the centers are contributing, and how Unnat Bharat Abhiyan program, which was conceived, developed by IIT Delhi, can contribute for the development of our country. Is it visible? Yes, sir. Yes. It's visible. Yes. So this Unnat Bharat Abhiyan program is Ministry of Education, earlier Ministry of Human Resource Development, and it started in 2014. And in 2014, we at IIT Delhi have decided that a new government has come, and now we have to use, this is rural friendly, this is people friendly. So how academic institutions can contribute in the development of our villages, development of our society, because still nearly 68% population of the country is residing in our villages. तो हम लोगों ने एक सोचा पहले कि देखिए, जो एक रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप हमारे आईआईटी दिल्ली में काम कर रहा है, हमारा सेंटर काम कर रहा है, तो कैसे हम लोग पूरे देश में जो टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं और जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं उन सबको आपस में बुलाएं, आपस में चर्चा करें कि किस तरह से टेक्नोलॉजी डेवलपर्स उनके लिए ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बिकॉज पिछले जो 70 साल का एक्सपीरियंस है वो इतना अच्छा नहीं है। गांव खाली होते जा रहे हैं, गांव के लोग सब शहर में आ रहे हैं, माइग्रेशन हो रहा है, और जो भी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है वो इतनी अफेक्टिवली गांव में यूज नहीं हो पा रही है। हम लोग अभी भी यूएस और यूरोप की तरफ देखते हैं टेक्नोलॉजी के लिए, और उनका कंट्रीब्यूशन गांव के लिए, उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, लाइवलीहुड के लिए इतना अच्छा साबित नहीं हुआ है। तो हमने एक वर्कशॉप रखी 3 दिन की 2014 में, और उसमें ये डिसाइड किया कि हम टेक्नोलॉजी डेवलपर्स को बुलाएंगे, टेक्नोलॉजी यूजर्स को बुलाएंगे, और जो गांव में एनजीओज हैं, जो सरपंच हैं, उन लोगों को बुलाएंगे ताकि वो बताएं कि किस तरह से सही ढंग से हम टेक्नोलॉजी को गांव तक के पहुंचा सकें, और वो टेक्नोलॉजी हम डेवलप करें आईआईटीज में, एनआईटीज में, डीआरडीओ में, सीएसआईआर में, जो कि वास्तव में उनके लिए यूजफुल हो। तो इन सब जो हमारी टैगलाइन, जो हमारे उस समय का प्रोग्राम बना 3 दिन का, उसमें हमने करीब 400 साढ़े 400 लोगों को पूरे देश भर से बुलाया और आपस में ब्रेनस्टॉर्मिंग रखा कि किस तरह से सही तरीके से टेक्नोलॉजी डेवलप होनी चाहिए देश में। जब हमने टेक्नोलॉजी डेवलपर्स, टेक्नोलॉजी यूजर्स, सरपंच, एनजीओ, उन सबको बुलाया, तो सोचा कि चलो पॉलिसी मेकर्स को बुलाते हैं। तो जो कंसर्न मिनिस्ट्रीज थी हमारी, जैसे कि रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री, उनके मिनिस्टर्स को भी बुलाया, भाई आप भी आइए, देखिए, समझिए कि वास्तव में देश में अगर हमको गांवों तक पहुंचना है, उनको डेवलप करना है, तो किस तरह का काम होना चाहिए। और हमने उस वर्कशॉप का नाम भी रखा था उन्नत भारत अभियान। तो उस समय हमारी मंत्री थी स्मृति ईरानी जी, वो जब आई इनॉग्रल में, तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है आप लोगों का। और उन्होंने उस इनॉग्रल में ही अनाउंस किया कि ये तो आईआईटी दिल्ली कैसे पूरे देश भर के लिए काम कर सकता है, इसको तो मैं हमारे मंत्रालय का राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाऊंगी। और वो वास्तव में गई और उन्होंने इसको नवंबर 2019 में राष्ट्रपति जी से लॉन्च किया, उन्नत भारत अभियान के नाम से ही। और कंसेप्ट क्योंकि आईआईटी का था, तो आईआईटी को ही जिम्मेदारी दे दी कि आप इसको चलाइए। इस तरह से कार्यक्रम शुरू हुआ। एंड द विजन ऑफ दिस
program was that it is inspired by the vision of transformational change in rural development processes by leveraging knowledge institutions to help build the architecture of an inclusive India. तो आज का जो आपका टॉपिक है कि उन्नत भारत अभियान के माध्यम से हाउ वी कैन हैव इंक्लूसिव इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत। तो और जो उन्नत भारत अभियान की टैगलाइन है, शिक्षित भारत जब बनेगा, सक्षम बनेगा, स्वस्थ बनेगा, संपन्न बनेगा और आत्मनिर्भर भारत बनेगा। और जो हमारी वेबसाइट है उन्नत भारत अभियान की, वो है unnatbharatabhiyan.gov.in, क्योंकि मिनिस्ट्री इसको होस्ट करती है। NIC के वेब पोर्टल पे ये प्रोग्राम चलता है और पूरे देश भर की कॉलेजेस इसका पार्ट हो सकती है। तो किस तरह से जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो इस प्रोग्राम को चला रही हैं और कैसे इसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी तक जो हमारा देखने समझने का अनुभव आया है वो ये है कि अभी भी जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है वो खाली किताबी ज्ञान पर आधारित है। प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत कम होता है बच्चों को। और जो हम कैंपस बनाते हैं हमारा, वो उसमें बाउंड्री वॉल होती है, उसमें हम हर किसी को अंदर नहीं आने देते। तो हमारे पड़ोस में भी जो गांव होते हैं उनसे हमारा कोई मतलब नहीं है, हमारे पड़ोस में जो रहने वाले लोग होते हैं उनसे हमारा कोई मतलब नहीं। उनको ये फीलिंग ही नहीं होती कि ये कैंपस हमारे लिए बना है या हमारे भी ये फायदा का हो सकता है। तो ये जो सारी बैरियर्स हैं, जो बाउंड्रीज हैं, हमको ये तोड़नी पड़ेगी। और इसीलिए ये प्रोग्राम हमने एनिशिएट किया, उन्नत भारत अभियान, कि जब हमारे एकेडमिक प्रोग्राम्स में, हमारे करिकुलम में ये बात होगी कि खाली किताबी ज्ञान नहीं, हमको प्रैक्टिकल जो हमारी लोगों की ट्रेडिशनल विजडम है, जो नॉलेज है, उसको भी समझना चाहिए, उसको भी यूज करना चाहिए। और जो रियल लाइफ चैलेंजेस हैं उसको हम लर्न करेंगे एकेडमिक्स के साथ साथ, किताबों के साथ साथ। तो हमारा जो स्टूडेंट का स्किल डेवलपमेंट होगा, जो उसका ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, वो बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगा। और उसी आइडिया के आधार पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन उस टाइम पे जो MHRD कहलाती थी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, दे हैव स्टार्टेड उन्नत भारत अभियान प्रोग्राम। और इसकी पूरे देश भर में फैलाने की जिम्मेदारी भी IIT दिल्ली को मिली, क्योंकि IIT दिल्ली का ही कंसेप्ट था और IIT दिल्ली ने ही इसको शुरू किया। तो ये इसका अगर थोड़ा सा और हम समझें कि गांधी जी ने क्या सपना देखा था। गांधी जी ने सपना ये देखा था कि ये देश जब आज़ाद होगा तो हमारे गांव का है वो स्वराज आना चाहिए गांव में। ग्राम स्वराज की उन्होंने कल्पना की थी कि हमारे सेल्फ रिलायंट विलेजेस बनने चाहिए, वो किसी पे आश्रित नहीं रहने चाहिए। मॉडर्न टेक्नोलॉजी भले आ जाए परंतु गांव में ही उतनी उन्नत होनी चाहिए, गांव के लोग को काम करने के लिए, रोजगार के लिए, पैसे कमाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़े। परंतु ऐसा हुआ नहीं। और देर आर ह्यूज डेवलपमेंटल डिस्कनेक्ट्स बिटवीन रूरल एंड अर्बन सेक्टर्स, such as inequity in health, education, income, basic amenities, as well as employment opportunities. अब देखिए गांव में गांव के लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं है, शहर में तो सब चीज अवेलेबल है, तो उनको भाग के फिर शहर आना पड़ता है, अपनी खेती छोड़ के, अपने काम धंधे छोड़ के। और शहर में आके फिर वो चाहे रिक्शा चलाते हैं या सिक्योरिटी गार्ड बनते हैं और कुछ करते हैं, और वो बेहतर जीवन की तलाश में आते हैं, पर उनका जीवन इतना बेहतर नहीं हो पाता। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने कि हैंस बीइंग द ब्रिज फॉर रूरल अर्बन लिंकेजेस एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कैन उन्नत भारत अभियान प्रोग्राम कैन बिकम a linkage between rural urban and socio economic development of the country। और जिस तरह से अनुभव आ रहा है कि वो इस बनने की कोशिश कर रहा है, एक पैराडाइम शिफ्ट हमारे एकेडमिक प्रोग्राम्स में आने लगा है। और इसमें जो विजन है वो ये है कि this is an effort to bring paradigm shift in our education and research programs of higher education institutions in the country by involving faculty and students of these institutions in addressing real challenges in our society। कि जो हमारे स्टूडेंट्स हमारे साथ काम करेंगे, गांव में जाएंगे, लोगों को समझेंगे, लोगों की टेक्नोलॉजी
रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करेंगे तो फिर, क्योंकि वो हमारे स्टूडेंट्स में अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, कर सकते हैं, और इतना बड़ा यूथ है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यूथ पावर अपनी इंडिया के पास है, तो बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। कैसे होता है ये कि हर इंस्टीट्यूट अपने आसपास के 5 गांव को गोद लेता है या सोचता है कि हम इन गांवों के लिए काम करेंगे। कॉलेज के स्टूडेंट वहां जाके ग्राम सभाओं में बैठते हैं, लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि वहाँ डेवलपमेंट के लिए क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। फिर उनकी अपनी विजडम क्या है, वहाँ पे क्या रिसोर्सेज हैं, वहाँ की जो गांव का जो कल्चर है वो किस तरह का है। जब ये सारी चीजें बात होती हैं तो उनकी समझ में आती है कि खाली ऊपर से चीजें थोपने से काम नहीं चलेगा, हमको उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उनके हिसाब से चीजों को लाना पड़ेगा। तो मॉडर्न जो अंडरस्टैंडिंग नॉलेज हमारे स्टूडेंट्स के पास है, वो जब गांव में लेके जाते हैं और गांव वालों के साथ मिलकर जब वो काम करते हैं तो उसको बहुत बेहतर रूप से, उपयोगी रूप से वो उसको वहाँ प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इन सब को देखते हुए हमने जो ऑब्जेक्टिव रखा वो ये है कि टू एंगेज द फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन अंडरस्टैंडिंग रूरल रियलिटीज। अगर आप ये सोच के जाएंगे कि हाँ हम तो ने तो किताबें पढ़ी हैं, हम तो महान ज्ञाता हैं, महान विद्वान हैं, और आप गांव में जाएंगे तो फिर गांव वाले आपको कोई रेस्पॉन्स भी नहीं देगा, आपके पास भी नहीं आएगा, और आप देखते रहिए कुछ नहीं हो पाएगा। पर जब आप इस भावना के साथ जाएंगे कि नहीं, हमको उनके साथ समझना है, उनके साथ काम करना है, उनकी जो नॉलेज है उसको भी यूज करना है, और हमारी जो नॉलेज है उसको भी उनको देना है, ताकि हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट हो। To identify and select existing innovative technologies, enable customization of technologies, or devise implementation method for innovative solutions as per the local needs. जब हमें ये फीलिंग आएगी कि हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, मैं अभी भी कह सकता हूँ कि हमारे ज़्यादातर फैकल्टी मेंबर्स को भी अभी भी अंडरस्टैंडिंग रियल लाइफ की नहीं है। किताबी नॉलेज उनको अच्छी है, अमेरिका से पीएचडी करके आए हों, पीडीएफ करके आए हों, परंतु जो जमीन पे हकीकत है उसकी अनुभव बहुत कम है। वो भी जब जाएंगे तो जरूर अच्छा काम कर पाएंगे। एंड therefore this program to leverage the knowledge base of our institutions to devise processes for effective implementation of various government programs। तो चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे जल जीवन मिशन हो, चाहे गोवर्धन प्रोग्राम हो, चाहे जो भी भारत सरकार के रूरल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हो, इंदिरा आवास योजना हो, प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हो, उसमें थोड़ा सा इनपुट हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन की नॉलेज का भी लग जाएगा तो फिर काम बड़े अच्छे से होने लगेंगे, जो कि इतने अच्छे से अभी नहीं हो रहे हैं। तो 2014 में ये शुरू हुआ, 2 साल तक के आईआईटी दिल्ली सबके पास जाता था, एमओयू साइन करता था, इंस्टीट्यूशन बनी, और 143 इंस्टीट्यूशन के साथ हमने एमओयू साइन किया। हम उनको 5 लाख रुपए देते थे और वो अपने आसपास के लिए काम करते थे। मगर फिर 2016 में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देखिए, ये देश इतना बड़ा है, इतने गांव हैं, इतने कॉलेजेस हैं, अगर इसी रेट से आप लोग काम करेंगे तो फिर पूरी देश को तो कवर नहीं कर पाएंगे। तो प्रोग्राम का मोड हमने चेंज किया, और प्रोग्राम को जो पहले इनविटेशन बेस्ड मोड था जिसमें कि हम लोग जाके सबसे रिक्वेस्ट करते थे, वो ज्वाइन करते थे, काम होता था, उसकी जगह सिलेक्शन चैलेंज मोड में हम लिया है इस प्रोग्राम को, कि हमारी वेबसाइट पोर्टल पे कोई भी इंस्टीट्यूट कभी भी 24/7 अप्लाई कर सकता है। और हर महीने फिर जो जो इंस्टीट्यूशन उन्नत भारत अभियान में पार्टिसिपेट करने के लिए अप्लाई करते हैं उनको 5 गांव चुनने होते हैं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को चिट्ठी लिखनी होती है कि भाई ये 5 गांव हम उन्नत भारत में लेना चाहते हैं, और हमको अपने, ये हमारा कोऑर्डिनेटर होगा, ये हमारे कॉलेज के सारे स्ट्रेंथ है, उसके साथ एक ये हमको चिट्ठी लिखनी होती है। और फिर हर महीने मिनिस्ट्री के साथ हमारी मीटिंग होती है, उसमें हम अप्रूव करते हैं कि हाँ आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एक क्राइटेरिया रखा हमने कि भाई इस मिनिमम क्राइटेरिया को आप फुलफिल करते हैं तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और जो ज्वाइन कर लेता है उसको हम फिर, आप देखिए कि 2014 से 2021 में कहाँ सिचुएशन आ गई है कि जो हम 1 NCI है, नेशनल कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट, 13 सब्जेक्ट एक्सपर्ट ग्रुप्स हैं जो अलग अलग इंस्टीट्यूशन इंडिया की हैं, वो एक्सपर्ट ग्रुप के रूप में काम कर रही हैं। 45 रीजनल कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट हैं हर स्टेट में कम से कम एक, और जो बड़े स्टेट्स हैं उसमें 2, 3, 4 तक हमारी रीजनल कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट है उन्नत भारत अभियान की।
और लगभग 2600 से ज़्यादा कॉलेजेस आज काम कर रही है। आप देख सकते हैं पिक्चर लेफ्ट में 2014 में अकेला आईआईटी दिल्ली में उन्नत भारत अभियान शुरू हुआ था, और आज हम लोग पूरे देश भर में, देश के हर कोने में, हर जिले में पहुंच चुके हैं और लगभग 14,000 से ज़्यादा गांव में काम कर रहे हैं। और इसी इन जो है उसमें यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, आईआईटीज़ हैं, एनआईटीज़ हैं, आईसर्स हैं, आईएम्स हैं, एम्स हैं, सभी, और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं। सभी तरह की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो उन्नत भारत अभियान में काम कर रही है। और थोड़ा सा सपोर्ट देते हैं, बहुत ज़्यादा कोई सपोर्ट नहीं है, परंतु क्योंकि ये कंट्री के लिए या डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम है, तो हर इंस्टीट्यूट की, हर स्टूडेंट्स की, हर फैकल्टी मेंबर की जिम्मेदारी है कि वो अपने सोसाइटी के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए काम करे। तो जो भी इंस्टीट्यूट 5 गांव सेलेक्ट करता है, बताता है कि हम ये 5 गांव काम करेंगे, तो 10,000 रुपीज पर विलेज के हिसाब से हम उनको सपोर्ट देते हैं, ताकि उसमें वो स्टूडेंट्स को अवेयरनेस वहाँ ले जाना है, ले आना है, उनका गांव का जो सर्वे करना है और डेवलपमेंट प्रोग्राम उनका बनाना है, और विलेज डेवलपमेंट रिपोर्ट बनानी है, वीडीपी, उसके लिए वो काम करते हैं। फिर जो कोई, आपने अगर इंस्टीट्यूट ने अच्छी कोई टेक्नोलॉजी डेवलप की है, स्टूडेंट प्रोजेक्ट कुछ डेवलप किया है और उसको इम्प्लीमेंट करके देखना चाहते हैं, तो उसके लिए पर इंटरवेंशन हम 1 लाख रुपया देते हैं। उसमें क्या करते हैं कि ऑनलाइन पोर्टल में आप सब्जेक्ट एक्सपर्ट ग्रुप, जो 13 सब्जेक्ट एक्सपर्ट ग्रुप्स हैं, उसमें देखिए कि कौन से सब्जेक्ट एक्सपर्ट ग्रुप के डोमेन में आपका वो प्रोजेक्ट आ रहा है, और फिर आप उसमें ऑनलाइन अप्लाई करें। 1 पेज का सिंपल फॉर्मेट है, फिर हमारी एक्सपर्ट कमेटी उसको रिव्यू करती है और फिर उसको सेक्शन करती है, तो आपको 1 लाख रुपए मिल जाता है। इसके साथ ही जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी कोई गांव में लगी हुई है और उसको आप चाहते हैं कि इसमें इसको ठीक करने की जरूरत है, अभी काम नहीं कर रही है, बंद पड़ी है, तो उसके लिए 50,000 रुपीज पर टेक्नोलॉजी कस्टमाइजेशन भी साथ में हम देते हैं। जो हमारे रीजनल कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, हर स्टेट में एक, और जो बड़े स्टेट हैं उसमें 2-3, जैसे कि यूपी की बात करूं, तो यूपी में आईआईटी कानपुर, आईआईटी बीएचयू, और बीच में दयालबाग आगरा। तो ईस्टर्न यूपी आईआईटी आईआईटी बीएचयू, वेस्टर्न यूपी आईआईटी कानपुर, और सेंट्रल पार्ट ऑफ यूपी वो दयालबाग इंस्टीट्यूट आगरा है, जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है। तो ये लोग काम देखते हैं। और इस तरह से जो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट हैं उनको मेंटर करना, उनको, उनके लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराना, उनको समझाना कि किस तरह से आपको काम करना है आगे, उसके लिए हमारी रीजनल कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर काम करती है। और साथ में ही एआईसीटीई और यूजीसी मंत्रालय के साथ में हमारे साथ उन्नत भारत अभियान के लिए काम करती है। और आप इन पैसों के अलावा जो आपके पास एलुमनाई होते हैं, आपके पास जो स्टेट की स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, और जो एलुमनाई फंड है उसको भी आप यूज कर सकते हैं। डिफरेंट जो कंपनीज है उनका जो सीएसआर का टारगेट होता है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसको भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। जैसे कि ओएनजीसी ने, आईओसीएल ने, इरेडा ने आईआईटी दिल्ली को अपने गांव में काम करने के लिए फंड दिया, ऐसे ही इंडिया में बहुत सारे कॉर्पोरेट हाउसेज ने उनके जो उन्नत भारत अभियान के गांव हैं उनके काम करने के लिए पैसा दिया। तो ये जो 13 इंस्टीट्यूट हैं, हर सब्जेक्ट एक्सपर्ट ग्रुप का एक अलग से इंस्टीट्यूट इंडिया में काम कर रहा है, और उस हर एक्सपर्ट ग्रुप के पास में करीब 20-25 उन्होंने एक्सपर्ट रखे हैं पूरे इंडिया से। हर रीजन और हर एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन को वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो रूरल एनर्जी सिस्टम से वो आईआईटी दिल्ली करता है, रूरल क्राफ्ट एंड आर्टिजन्स आईआईटी कानपुर कर रहा है, सैनिटेशन एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आईआईटी मद्रास काम देखता है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर आईआईटी रुड़की देखता है, ये एनआईटी दिल्ली बीच में था, अभी आईआईटी रुड़की हो गया उसका। ईथोज इन टेक्निकल एजुकेशन को आईआईटी मुंबई देखता है, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट को आईआईटी खड़गपुर और जीएसआईटी इंदौर आपके देखते हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सिस्टम को इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली देखता है, कैपेसिटी बिल्डिंग स्ट्रेटेजी फॉर कन्वर्जेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस गवर्नमेंट स्कीम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज हैदराबाद देखता है, स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप्स ये एआईसीटी खुद देखता है, क्यूरिकुलम रिफॉर्म्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ये यूजीसी खुद देखता है, इम्प्रूवमेंट इन स्कूल एजुकेशन आईआईटी दिल्ली देखता है, और एक और जो 13 है वो अदर्स,
इन सब के अलावा जो काम नहीं आए, जो इसके अलावा कुछ हो, और जो कोविड से रिलेटेड कुछ हो, अगर आपने कुछ करना है, कर रहे हैं, तो फिर वो भी आईआईटी दिल्ली के पास ही जिम्मेदारी है। तो इस तरह से 13 सब्जेक्ट एक्सपर्ट ग्रुप्स हैं हमारे। और ये जो सारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट ग्रुप्स है, 5 थीमेटिक एरियाज हमने रखे हैं। इन 5 थीमेटिक एरियाज के आधार पर हाउ दे आर लिंक विथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो एवरी थीमेटिक एरिया इज कनेक्टेड विथ ए फ्यू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो क्योंकि वो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है कि सारे सस्टेनेबल गोल, जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, वो मीट आउट होने चाहिए, तो हम लोग भी उस पर मिलकर काम करेंगे, उन गोलों को डिफाइन करके काम करेंगे, तो निश्चित रूप से पूरी दुनिया में जो हमारे कंट्रीब्यूशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए, वो वेल डिफाइंड होते हैं और उनके लिए हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये प्रेजेंटेशन हम आपके साथ शेयर कर लेंगे, तो ये डिटेल्स सारी ये वो मिल जाएगी। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बता के, कुछ जो हमारे कॉलेजेस ने, जो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट है, उन्होंने सक्सेसफुल काम किए हैं, उसका थोड़ा सा आपको डिटेल बता देता हूँ, ताकि आपको लगेगा कि नहीं, उन्नत भारत अभियान में भी लोग, कॉलेजेस किस तरह से अच्छे से काम कर रहे हैं। तो अगले 5-7 मिनट में मैं इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ, और फिर हम लोग आपस में चर्चा करेंगे कि किस तरह से साथ में मिलकर हम लोग काम कर सकते हैं। तो एक राजा राम भाऊ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सखराले है महाराष्ट्र में। इन्होंने, इनके स्टूडेंट्स ने ग्राम सभा में भाग लिया, फिर गांव का सर्वे किया। गांव का सर्वे करके इन्होंने गांव में सीवेज लाइन किस तरह जानी चाहिए, वाटर सप्लाई लाइन किस तरह से होनी चाहिए, और पूरा वाटर सप्लाई का डिजाइन, ड्राइंग कैसे होनी चाहिए, वो प्लान बनाया। और आप देखिए कि पूरे गांव की उन्नत भारत अभियान की वजह से पूरी काया पलट हो गई, कि देखिए हमारे जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, हमारे फैकल्टी मेंबर्स थे इस कॉलेज के, उन्होंने इस गांव के डेवलपमेंट के लिए कितना काम किया है। ऐसी है कि कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में है। इन्होंने रूरल औरतों का एक ग्रुप बनाए 5 गांव में, पत्तल धोना बनाने की मशीनें दी, मशरूम कल्टीवेशन का उन्होंने ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाया, और बढ़िया सेवइयाँ पिकल इस तरह बनाने की ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज की। और सारी औरतों का ये अनुभव आया कि उनकी इनकम बढ़ गई है, उनके घर की सिचुएशन ठीक हो गई है, और उन्नत भारत के जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया है। ऐसी ये एनआरआई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, जिन्होंने जीरो बजट फॉर नेचुरल फार्मिंग इन ड्रॉट अफेक्टेड विलेजेस इन आंध्र प्रदेश के लिए काम किया। और आप देखिए गांव वालों के किसानों को इतना फायदा हुआ, सारे किसान देखिए, और स्टूडेंट्स देखिए जिन्होंने बैनर लेके खेत में अपना पिक्चर ये दिया है। ऐसे ही एक हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अमरावती महाराष्ट्र, इन्होंने क्या किया कि द एनवायरमेंट कंट्रोल ऑटोमेटेड ग्रीन हाउस फॉर हाई वैल्यूज एग्रो प्रोड्यूस इन विदर्भा रीजन। तो इन्होंने उसका डिजाइन बनाया, लोग वहाँ के फार्मर्स को प्रेरित किया कि आप ये ग्रीन हाउस कंट्रोल सिस्टम का काम करिए, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने उनको सपोर्ट किया 5 लाख रुपए का। और वो जब ग्रीन हाउस बन के और गांव वालों को फायदा होने लगा, तो इन्होंने गांव वालों की एक प्राइवेट कंपनी बनाई, एग्रोटेक सर्विसेज काउंसलिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और देखिए कि फिर इन्होंने 2-3 जो नेशनल कंपटीशन हुए थे उसमें पार्टिसिपेट किया, और उसमें जो इनको 1-3 लाख रुपए का ग्रांट मिला इस प्रोजेक्ट के नाम पे, वो भी इन्होंने गांव वालों को दे दिया कि देखिए ये भी आप यूज करिए। स्टूडेंट्स ने उसका 1 रुपया भी नहीं लिया। तो इस तरह से हमारे स्टूडेंट्स, हमारे फैकल्टी मेंबर्स गांव के डेवलपमेंट के लिए, लाइवलीहुड के लिए काम करते हैं। ये झारखंड का एग्जाम्पल है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैसरा रांची, बिट्स तो आप लोगों ने सुना होगा। तो बिट्स वालों ने क्या किया कि कागज को और पेपर को, और किस तरह से कागज की थैलियाँ, पेपर बैग्स, और उसके अच्छे हैंडमेड पेपर्स का बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, और उससे गांव वालों की इनकम बढ़ सकती है। तो ऐसे डिजाइन, ड्राइंग और सारे उसका बनाया इन्होंने, और उस पर काम किया। इसी तरह से B.R. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी श्रीकाकुलम है, और यहाँ के स्टूडेंट्स हर शनिवार को पूरी बस इस हॉस्टल से भर के इनकी गांव में जाती थी,
और इन्होंने कुछ ऐप डेवलप किया कि हेल्थ के ऐप है, किडनी पेशेंट के लिए ऐप है, और उन गांव वालों को ये फायदा हुआ कि डॉक्टरों से सीधा कंसल्टेशन ऐप के माध्यम से होने लगा। तो वो गांव वाले भी बड़े धन्यवाद देते हैं कि इस यूनिवर्सिटी के बच्चों ने उन्नत भारत अभियान के माध्यम से हमारे को ये जो सारी बीमारियों के लिए डॉक्टरों से कनेक्ट करवाया और हमारे यहाँ के डेवलपमेंट के लिए पार्टिसिपेट किया, वो बहुत धन्यवाद देते हैं। इसी तरह की राजीव गांधी मेमोरियल कॉलेज है आंध्रा में, इन्होंने डिजिटल क्लासरूम स्कूल के बच्चों के लिए काम कर रहे हैं लोग, और उसमें डिजिटल क्लासरूम बनाया, उन्नत भारत अभियान की ग्रांट ली, और उससे बच्चों को बहुत फायदा हुआ और गांव वालों को इतना अट्रैक्ट हुआ कि देखिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं उन्नत भारत अभियान से। IIT कानपुर उन्होंने क्या किया कि उनके जो गांव थे उन गांव में उन्होंने स्पोर्ट्स इवेंट रखी, जो गांव में आपस में पॉलिटिक्स थी और कास्टिज्म थी, उससे दूर हटके उस जो इवेंट हुई, 5 गांव के करीब 800 बच्चे और बड़े सारे एक जगह इकट्ठे हुए, रेस मैराथन रेस भी रखी उन्होंने, और प्रोग्राम भी स्पोर्ट्स की ऑर्गेनाइज की। वो सब जो पार्टी पॉलिटिक्स भूल गए, वो सब कास्टिज्म भूल गए, और पूरे गांव को यूनाइट होने में उन्होंने मदद की। और IIT दिल्ली के स्टूडेंट्स ने वहाँ पे 2-3 स्टार्टअप पे काम किया, और वो गांव वालों के साथ मिलके उन पे काम कर रहे हैं। एक ये कोयम्बटूर का इंस्टीट्यूट है, जिन्होंने वहाँ की सोलर लाइट्स बहुत साल पहले लगी थी, सब खराब हो रही थी, तो कस्टमाइजेशन ऑफ प्रोजेक्ट में इन्होंने सारी रिपेयर करवाई। वही लोकल रिपेयर मेंटेनेंस के लिए एक आदमी को ट्रेन किया, और वो गांव में अब लाइटिंग पूरी अच्छी से चल रही है, अच्छे से काम हो रहा है। ऐसे ही SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चेन्नई में, इन्होंने एक वहाँ पानी के साफ मिलता था, तो उसके लिए रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट गांव वालों के लिए लगाया, वो स्कूल में लगाया इन्होंने, और सबके लिए यूज होता है वो, और उस, उससे सब लोगों को बड़ा अच्छा फायदा हुआ। ऐसे ही एक ये ब्रेन में यूनिवर्सिटी कलकत्ता के पास में है, और वहाँ पे इन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग का पूरे गांव में सिस्टम बनाया, और उसका डिजाइन किया, उसको बनवाया, और वो बड़े अच्छे से चल रहा है। तो इस तरह से देर आर मेनी सक्सेस स्टोरीज वी कैन से कि इंडिया भर में उन्नत भारत अभियान के माध्यम से पूरे देश भर में। और कुछ ये ट्राइबल कम्युनिटीज हमने साइन किया है MOU ट्राइफेड के साथ में, ट्राइबल एरिया मार्केटिंग फेडरेशन के साथ में, और उनका वंधन योजना करके प्रधानमंत्री ने एक नई शुरू की थी अभी, 3,000 करोड़ का उनका टारगेट उसमें ग्रांट है। और वंधन योजना में गांव में जो रिसोर्स, वन में जो रिसोर्स है और जो ट्राइबल्स वहाँ काम करते हैं, उनकी वैल्यू एडिशन करके उसका मार्केटिंग की जाए, और वो उस काम में हमारे स्टूडेंट्स ऐसे कॉलेजेज में जो ट्राइबल एरियाज में पढ़ते हैं उसमें लगे हुए हैं। और ये आई शक्ति तिरुवनंतपुरम का है, इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया पिछले 3-4 सालों में। और ये SPH जैन साइंस कॉलेज चंदवाड़ है महाराष्ट्र में, वहाँ पे ग्राम सभा और रोड मेकिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग और वहाँ की लोकल सैनिटेशन प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग, तो ये सब काम करवाए इन्होंने। और ये कुछ ट्राइबल एरियाज में, कुछ गांव में महाराष्ट्र में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, जब्वा डिस्ट्रिक्ट में, जब्वा में तो आपके जो SGSIT है इंदौर में, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है हमारे साथ मिलके, तो वाटर रिसोर्स के लिए और दूसरे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। तो कोविड-19 में भी हम लोगों ने बहुत भाई जो भी इंस्टीट्यूट काम करना चाहेगा अवेयरनेस के लिए, सैनिटाइजर के लिए, मास्क के लिए और दूसरे कामों के लिए, वो बहुत सारे प्रपोजल आए और वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। तो अगर स्टूडेंट्स को हमारे मेंबर बनना हो उन्नत भारत अभियान का किसी भी कॉलेज में, या तो वो कॉलेज मेंबर है तो ऑलरेडी वो स्टूडेंट उसमें काम कर सकते हैं। अगर कॉलेज मेंबर है नहीं है तो दे कैन स्टूडेंट कैन रिक्वेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन कि उन्नत भारत अभियान में आप रजिस्टर करिए एंड बी ए पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। और अगर मान लो कोई नहीं है और वो इंटर्नशिप करना चाहे, तो जो आसपास के इंस्टीट्यूट उन्नत भारत अभियान में काम कर रही है उन गांव में वो अपनी इंटर्नशिप भी कर सकते हैं। तो AICTE ने इसको मैंडेटरी कर दिया है
एक तो यूजीसी ने क्या किया कि एक 2 क्रेडिट का कोर्स डेवलप किया, कम्युनिटी एंगेजमेंट इन सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। और ये जो कोर्स है ये पूरे इंडिया में सारी यूजीसी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में अब चल रहा है। और इसमें अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए, और इसमें जो 2 क्रेडिट का कोर्स है उसमें आपको किताबी ज्ञान नहीं, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज, गांव में कुछ काम करना पड़ेगा, उसी पे आपको क्रेडिट मिलेगा। ऐसे ही एआईसीटी ने 100 आवर्स की इंटर्नशिप भी शुरू कर दी है, रूरल इंटर्नशिप प्रोग्राम। और वो जरूरी है कि हर बीटेक स्टूडेंट को गांव में जाके 100 आवर्स इंटर्नशिप के लिए करना पड़ेगा। और जो इंस्टीट्यूट अभी जो हमारे इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, और उनका इंस्टीट्यूट अगर उसका यूबीए का पार्ट नहीं है, तो वो स्टूडेंट से कहीं भी अपने आसपास के इंस्टीट्यूट में रिक्वेस्ट कर सकते हैं काम करने के लिए। एक और पोर्टल हमने विज्ञान भारती के साथ बनाया कि हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे उन्नत भारत अभियान के स्टूडेंट्स के माध्यम से, और उस प्रॉब्लम को फिर हम शेयर करेंगे पूरे देश भर के इंस्टीट्यूशन के साथ में, और जो भी सॉल्यूशन उसका डेवलप करेगा उसको वापस फिर हम गांव तक ले जाएंगे। तो ये कि पोर्टल हम बना रहे हैं टेक फॉर सेवा, टेक्नोलॉजी फॉर सर्विस, कि उसके माध्यम से जो गांव की टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसको प्रॉब्लम में रूप में रखेंगे, और फिर जो भी इंस्टीट्यूट, जो भी फैकल्टी मेंबर उसको सोल्व करके उसका सॉल्यूशन देंगे, उसको भी हम वापस गांव में ले जाएंगे। और इस तरह से गांव वालों के साथ मिलके हमारे फैकल्टी मेंबर्स, हमारे टेक्नोलॉजी डेवलपर्स काम करेंगे। और रूरल इंटर्नशिप का तो हम ऑलरेडी कर ही रहे हैं। ऑलरेडी उन्नत भारत अभियान एनआईआरएफ रैंकिंग में शामिल है, नैक एक्रेडिटेशन में शामिल है। और अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कहा है कि हमारे फैकल्टी मेंबर्स के प्रमोशंस के लिए भी, और ये उन्नत भारत में अगर वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उसको क्रेडिट किया जाएगा। और यूजीसी ने ऑलरेडी 2 क्रेडिट का कोर्स शुरू कर दिया है। नाउ आई इनवाइट ऑल ऑफ यू टू कंट्रीब्यूट इन इंडिया डेवलपमेंट बाय सपोर्टिंग, contributing in our adopted village of Unnat Bharat Abhiyan, because Vivekananda said at that time, education isn't only collection of information, but something more meaningful. Education should be man-making, life-giving, and character building. So, with this vision of Swami Vivekananda, we can progress our education system, that how we can contribute for the development of our nation. And after Corona pandemic, situation has changed. Now आप देखिए कि कोरोना के बाद लास्ट ईयर अप्रैल में कितने लाखों लोग वापस अपने गांव में पहुंच गए थे, और बहुत सारे लोग अभी भी गांव में रुक गए हैं, वापस शहरों में नहीं आए हैं। और वापस अभी वही सिचुएशन हो रही है, वापस बढ़ रही है, तो लोग बाग शहर में पास में रह नहीं सकते, क्योंकि झुग्गी झोंपड़ी में रहना और गंदी सिचुएशन में रहना कोरोना के लिए सेफ नहीं है। हमको 2 गज दूरी तो बना के रखनी पड़ेगी। एक एक कमरे में अगर 8-8 लोग रहेंगे तो काम और गति से बढ़ेगा नहीं, और कोरोना आप पे हावी हो जाएगा। इसलिए हमको प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है कि वी हैव टू बिकम नाउ सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर चाहे वो गांव के लेवल पे हो, चाहे कस्बे के लेवल पे हो, चाहे जिले के लेवल पे हो, चाहे राज्य के लेवल पे हो। और वो कैसे हो सकते हैं? वो तभी हो सकते हैं जब हमारा अपना सिस्टम हो, हमारा माइंडसेट ऐसा हो जो कॉलोनियल माइंडसेट से अलग हो। जो 200 सालों में ब्रिटिशर्स ने हमको माइंडसेट दे दिया कि नहीं, हम कोई अपना अच्छा काम नहीं कर सकते, हमारी जो कल्चर है, हमारा जो ट्रेडिशन है, वो सब बेकार है, उसको हमको रिवाइव करना पड़ेगा। हम लोग नदी को, पहाड़ को, प्रकृति को पूजते हैं, प्रकृति के आधारित अपनी जीवन यापन करते हैं। आप देखिए कि सारा सिस्टम हमको ठीक करना पड़ेगा। और गांधी जी का जो विजन था कि कैसे गांव के लेवल पे ही सारे जो आपकी जो रोजमर्रा की आवश्यकता है वो आराम से उससे पूरी हो सकती है, उस विजन को लाके हमारे जो 7 लाख गांव हैं और जो 45,000 कॉलेजेस हैं, आने वाले टाइम में शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि सभी गांव उन्नत भारत अभियान और सभी कॉलेजेस उन्नत भारत अभियान के माध्यम से काम करने चाहिए। और ऑलरेडी उन्नत भारत अभियान ने जो ट्राइबल
मार्केटिंग फेडरेशन है उसके साथ एमओयू साइन किया है। CSIR के साथ जो पिछले 100 साल में टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है और वो गांव के लिए यूजफुल हो सकती है, उसके लिए एमओयू साइन किया है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच है उसके साथ DST का जो सेंटर है उसके साथ किया है। विज्ञान भारती के साथ किया है। मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट एंड यूथ जो NSS प्रोग्राम चलाती है उसके साथ किया है। और आने वाले समय में हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, जल शक्ति अभियान, MNRE सबके साथ उन्नत भारत अभियान एक फ्लेक्सिक रूप में आने वाला है। तो अब जो है हम सब मिलकर कोशिश करें कि किस तरह से हमारे गांव संपन्न बन सकें, वहां पे वहां के लोगों को शहर में नहीं आना पड़े, वहीं पे सब कुछ काम उपलब्ध हो। क्योंकि कोरोना पैंडेमिक ने हमको सिचुएशन दे दी है कि गांव में रह के, घर में रह के भी आप काम कर सकते हैं। तो किस तरह से हमारा देश आत्मनिर्भर बने और हमारा गांव आत्मनिर्भर बने, इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। और आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। यस। थैंक यू वेरी मच सर, और धन्यवाद। हमें बहुत अच्छा लगा, ये इंकरेजमेंट देगा हमें आगे काम करने के लिए कि कैसे काम करना चाहिए, क्या और हम करें कि सोसाइटी के लिए अच्छा हो। जिस तरीके से जो आपने प्रोग्रेस दिखाया और लोगों ने अलग अलग स्टेट के से लोगों ने प्रोग्रेस किया हुआ है, इस डायरेक्शन में सोसाइटी के लिए काम किया हुआ है, हमें अपनी सोसाइटी को याद रखना चाहिए। तो मतलब काफी अच्छा लगा। आई थिंक हम भी उस डायरेक्शन में कोशिश करेंगे कि आपके साथ मिलके और भी इंस्टीट्यूट के साथ मिलके कुछ और भी अच्छा काम करने की कोशिश करें। तो क्वेश्चन। नमस्ते सर, राजेश यार फिजिक्स से। सर मैं ये कह रहा था कि स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करने के लिए कुछ ऐसा कोई क्रेडिट वाला कोर्स बना सकते हैं क्या इससे रिलेटेड, ताकि स्टूडेंट, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट क्रेडिट की होती है, इसको या तो एक इलेक्टिव कोर्स ऐसा बना ले ज़्यादा, जिसमें कि ट्यूटोरियल वाला पोर्शन रख के, जिसमें कि उसकी ग्रेडिंग भी कर सके। तो क्या स्टूडेंट एक ऐसे कोर्स ले लेंगे तो वो क्या हमारे साथ जुड़ लेंगे इसको काम को करने के लिए? अदरवाइज अभी क्या वॉलेंटरी होता है। अगर मान लीजिए 2 क्रेडिट का भी कोर्स रहेगा ये, तो हफ्ते में 2 दिन उनको मतलब ऐसा ट्यूटोरियल पोर्शन रखेंगे, 0 कोर्स। तो सर ऐसा करना अलाउड रहेगा क्या सिस्टम में अपने? सर आपका माइक म्यूट है सर, पूछिए सर। या तो ये IITs का ये एडवांटेज है कि वो अपने कोर्स से अपने सिस्टम डेवलप कर सकती हैं। आप देखिए IIT दिल्ली ने, हम लोग पिछले 7 साल से, 7 ही बल्कि 8-9 साल से प्रोफेशनल एथिक्स एंड PESR सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ये करके कोर्स चला रहे हैं। दिस इज कंपलसरी कोर्स फॉर ऑल BTech प्रोग्राम्स, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। और 1 क्रेडिट का होता है वो। और उसमें फिर 2 क्रेडिट का डिजाइन कोर्स एक और चलाते हैं कि कोई भी वो प्रोजेक्ट गांव के लिए, सोसाइटी के लिए, इंडस्ट्री के लिए करना चाहें तो किसी भी फैकल्टी के सुपरविजन में, अपने डिपार्टमेंट के नहीं दूसरे डिपार्टमेंट के फैकल्टी के सुपरविजन में कर सकते हैं। तो IIT इंदौर नया है तो इनको भी करना चाहिए। और ये PESR के हिसाब से और डिजाइन प्रोजेक्ट के हिसाब से हम स्टूडेंट्स को, BTech स्टूडेंट्स को प्रोग्राम दे सकते हैं।